محترم حضرات، ابھی آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم منقبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کر رہے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے بیچ، ہمارے اور آپ کے سامنے مخدوم ابن مخدوم، شہزادہ حضور، معصوم ملت، کنز الدقائق، بحر زخار، حضرت علامہ مولانا مفتی فاران مدرسہ قبلہ جلوہ فروز ہے، رونق اسٹیج ہے، ہمیں اور آپ کو ان کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں شعر آپ کے حوالے کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے دل میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کن کی بارگاہ؟ وہ بارگاہ جن کے بارے میں علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ محترم حضرات، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا مفتی فاران مدرسہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت اپنی گفتگو سے، اپنی روحانی تقریر سے ہم سامعین کے دل کو اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے۔ اس سے قبل ایک شعر اور سن لیں۔ شاعر کہتا ہے، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس۔ جب کوئی انسان تعریف کرتا ہے، جب تعریف اس کے پاس الفاظ نہیں ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس بہت اچھی تھی۔ جیسے آپ آج مجلس میں موجود ہیں، کل کہیں جائیں گے کوئی پوچھے گا آپ کل جس مجلس میں موجود تھے، جس محفل میں موجود تھے، اس کا حال کیا تھا، کیسی تقریر ہوئی، آپ کہیں گے کیا کہوں کہ بس۔ تو شاعر کو الفاظ نہیں ملے سرکار کی تعریف کے لیے، تو شاعر نے کہا بس کے الفاظ کو استعمال کیا اور کہا، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس۔ یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس۔ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شہدائی کے بس۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس۔ محترم حضرات، آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے پرزور انداز میں ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر،
احباب اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعد الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، مظہر غوث اعظم، نائب امام اعظم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فضائل درود پاک کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص حضور پر کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ محبوب میں، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کر گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ بات کیا کم تھی کہ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو، قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر۔ تو نے ایک بار درود پاک پڑھی، حضور کی بارگاہ میں تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ اور سنو میاں، سبحان اللہ، ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس بارگاہ کے ذروں کے سامنے کہیں ہمارا ذکر ہو جاتا۔ اللہ، تو قربان جاؤ اپنی نسبتوں پر کہ تمہارا بھی ذکر ہے اور تمہارے باپ کا بھی۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا کرم والہ الکرام عبدہ الکریم، مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی آپ نے اس اشعار کے اندر آپ نے معراج حضور کے تعلق سے گفتگو سنی، فردن بفردن اجمالی طور پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان
عرب کے مہمان کے لیے تھے. طرف کہتے ہیں خوشی کو. پھر سنو, نئے نرالے خوشی کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خوشی کے بادل امڑ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے, وہ نغمے ناک کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. آپ جانتے ہو, آپ کو معلوم ہے, خوشی کے بادل طاؤس کہتے ہیں مور کو. طاؤس کسے کہتے ہیں؟ اور مور کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب بادل کبھی جھوم جھوم کر آتے ہیں اور موسم سہانا ہوتا ہے, جب رت سہانی ہوتی ہے تو اس خوبصورت موسم میں مور جھوم جھوم کر ناچنے لگتا ہے. کہتے ہیں مور کو. اب پھر سنو اعلیٰ حضرت کو. خوشی کے بادل امڑ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے, دلوں کے مور کچھ عجب رنگ لائے, وہ نغمے ناک کا سما تھا. اگیا والو تم کون ہوتے ہو؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. خدا ہی صبر دے جانے پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے, جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہوئے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا, یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا, یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا, کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو معلوم ہوگا, ابھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ موقع میسر آئے تو کبھی آپ دیکھیں گے جب علامہ سیف رضا صاحب حشمتی اور علامہ حامد رضا صاحب حشمتی ان کے گھر میں کبھی ان کے شہزادہ دولہا بنے, جب دولہا بنے تو ایک دولہا جب بنتا ہے تو ہم تو سنی دولہا کے سر پر صحرا بھی مانگتے ہیں. مردود ان کی فاقہ مر گئے مردود نہ درود, نہ ان کو صحرا خوشی میں ملنے والا ہے اور نہ صحرا جب قبرستان چلے تب ملنے والا ہے. سنی تو جب یہاں کا دولہا بنتا تب بھی صحرا, اور جب آخرت کا دولہا بنتا تب. اب آپ جانتے ہو جب ان کا شہزادہ, جب آپ کا شہزادہ, جب آپ کے گھر میں کوئی شخص دولہا بنتا ہے, طریقہ جانتے ہو, آپ کے عزیز و اقارب آپ کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں, اس کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں, کوئی 500,000 نچھاور کرتا ہے, کوئی 1,00,000 جو اپنی وسعت کے مطابق ہوتا ہے وہ نچھاور کرتا ہے. تو نچھاور لوٹنے والے بھی تو ہوتے ہیں, نچھاور لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھر کا دولہا تھا, آپ نے نچھاور کیا تو فلاں اور فلاں نے اس کو لوٹنے آئے, لیکن جب آمنہ کا لال دولہا بنا تھا, جب محبوب رب العالمین دولہا بنا تھا, جب امام الانبیاء دولہا بنے تھے تو اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے تھے کہ جب دولہا بنے تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا. آپ کے گھر میں باڑا بٹا تو مانگنے والے آئے, لیکن محبوب کے در پر جب باڑا بٹا تو چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. فیضان حضور مشاہد ملہ, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی آدم عالم. اب سنو, حضور دولہا بنے, باڑا بٹا اور چاند و سورج نے خوب مچل مچل کر خیرات جبین اقدس کی لے لی. ہاں, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت جب چاند و سورج نے لے لیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کچھ پتا ہے
علم ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے پیاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ وہابی بولے نبی نور نہیں، وہابی بولے نبی نور نہیں، دیوبندی بولے نبی نور نہیں، مجدی بولے نبی نور نہیں۔ اور محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بولے حضور تو وہ نور ہے، وہ نور ہے کہ ان کا دھوبن جو شہ پالے وہ ایسی نورانی ہو جائے کہ قیامت تک جب تک روزوں جب رہیں گے چاند و سورج نور کے صدقے سے چمکتے رہیں گے۔ جو بولے نور نہیں، جو بولے نور نہیں، اللہ کی رحمت نے کہا محبوب کے رحم کا صدقہ اگر چاند و سورج کو ملے تو وہ نور بن کے چمکتے وہ محبوب کا معاملہ ہے کأن الشمس تجری فی وجہ۔ فرماتے حضرت جابر سبحان اللہ وہ حضور کا سبحان اللہ چہرہ نور ہم دیکھتے تھے سورج حضور کے چہرے میں جیسے تیر رہا ہے۔ حضرت برہ بولے کہ ہم نے حضور کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا آئی تو فرماتے حضور کی طرح ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ لیکن سنو اب آگے آپ چلو، حضور دولہا بنے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا ہی صبر دے جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اب سنو آگے اب حضرت جبریل امین ہے اور حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت جبریل ہے۔ واقعہ بہت طول و طویل، میں اس کے اجمالیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، محبوب چلے، اب رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، محبوب چلے۔ حضور شربش سنت بولے اللہ بھی طالب ہے تیرا، اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی۔ محبوب چلے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے اور بیدار کرنے کا انداز نرالا آپ کو پتا ہے۔ کون جبریل امین؟ تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا؟ مجدد نیت ماضیہ کی زبانی سنو، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، تیرے گھر کا گھرباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خاخر نبیوں میں فرمایا جاتا ہے۔ بیدار کرنے کا ایک انوکھا اور نرالا طریقہ یہ ڈھونڈا، وہ طریقہ یہ تھا کہ آواز دیں گے تو قرآن کی نص قطعی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نص ہے اپنی آواز کو بلند تو نہیں نہ کرنا حضور کی بارگاہ میں کہ اعمال ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد بیدار کرنے کا جو طریقہ نرالا تلاش کیا گیا تو جبریل امین کی محبت آپ کے طلباء ناز پر اپنی آنکھوں کو مس کر رہے ہیں۔ اس لمحے کو جب اعلیٰ حضرت قید کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت، اب حضور کے طلباء ناز اور جبریل امین اس پر بوسہ دے رہے ہیں۔ اب پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، اس لمحے کو قید کیا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے اتنا وقار۔ اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے اتنا وقار۔ اللہ اکبر ایڑیاں، الغرض حضور باہر تشریف لائے، برات سواری ہے، واقعے میں کی طوالت میں نہ جا کر میں آپ
आपको बताना ये चाहता हूँ। अब उधर हज़रत जिब्रील कह रहे हैं चले चले हुजूर बुराक सवारी को ज़ीनत बख्श दिया जाए, चले चले हुजूर बुराक सवारी पर जलवा अफरोज हो जाया जाए। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, कहते थे ये बुराक से उसकी सुबुक रवि यूं जाएगी कि गर्दे सफर को खबर ना हो, मुझसे उतारो राह गुजर को खबर ना हो। अल्लाहु अकबर। और इधर महबूब कह रहे हैं नहीं नहीं जिब्रील बुराक पर तो सवार नहीं होना है। अल्लाह अल्लाहु अकबर तलब फरमा रहा है, महबूब फरमा रहे हैं बुराक पर सवार नहीं होना है। मामला क्या है? जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह अल्लाहु अकबर महबूब है। हुजूर मामला क्या फरमाया जाता है? जब तक मेरे गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श कर रब जन्नत का हकदार न बना देगा, उस वक्त बुराक पर न बैठा जाएगा। फरमाया जाता है जब तक बुराक पर सवार नहीं होगा, हाँ, जब तक रब गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श नहीं देगा। हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी न आए थे पुश्त जी तक कि सर की मग़फ़िरत की शल्लत, अब महबूब को ये सर हो गई है। जानते हो उर्दू मुहावरे के अंदर जब कोई बात सर हो जाना कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है जब तक ये बात कर ली जाएगी, जब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उर्दू के अंदर कहा जाता है फला बात हजरत और हामिद साहब को सर हो गई है, मतलब ये इन्होंने करने की ठान ली है। आला हजरत फरमाते हैं अभी न आए थे पुश्त जी तक, अभी बुराक की जीन तक तशरीफ न लाए थे कि सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत। महबूब फरमा रहे हैं मौला जब तक गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श कर उनको जन्नत का हकदार न बना दिया जाएगा, बुराक की जीनत नहीं बख्शी जाएगी, बुराक पर सवार नहीं हुआ जाएगा। जब ये आरज़ू हुई इधर से आवाज आई अल्लाहु अकबर, रहमत ने पुकारा महबूब आना आपका काम है और बख्शना ये मेरा काम है। तो आला हज़रत पुकार उठे जब बख्शिश हो गई उस रात जिस रात हमारे आपके महबूब दूल्हा बने थे, तो सुनो अभी ना आए थे पुश्त जी तक कि सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत, तो सदा ये शफ़ाअत में दी मुबारक। फिर हम और आप जैसे गुनाहगार मस्ताना झूम थे। जरा जोर से कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुजूर शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो अल्लाहु अकबर। अशअतुल लमात के अंदर हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी एक मतन हदीसी मेराज के अंदर ये आया मिशकात शरीफ में कि बुराक सवारी की रफ्तारी का आलम ये था कि एक कदम यहाँ होता था तो एक कदम मुंतहाए निगाह पर होता। जानते हो जहाँ तक तुम्हारी निगाह जा रही है वहां तक दूसरा कदम होता था। इस मतन हदीस के ऊपर मुहद्दिस देहलवी अशअतुल लमात शरह मिशकात के अंदर फरमाते हैं शरह करते हुए हमारी निगाह की इंतहा तो आसमान तक है, हमारी निगाह की इंतहा तो आसमान तक है। तो हदीस पाक में आया मुंतहाए निगाह, मतलब पता ये चला बुराक सवारी का एक कदम हजरत उम्मे हानी के घर पर तो दूसरा कदम पहले आसमान हल हो गया कि 7 आसमानों में बुराक ने 7 कदम रखे। फिर उलमा वहीं पर हाशिया लगाते हैं कि ये रफ्तार भी बुराक की थी, महबूब की पता ही नहीं। ये रफ्तार भी बुराक की थी, महबूब की पता ही नहीं। और महबूब की जब रफ्तार और महबूब की अल्लाह अकबर सिंध
की बात आई तो आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत झूम कर कहने लगे, कमाने इनका के झूठे नुक्ते, तुम अव्वल और आखिर की फेर में हो, मुहीद की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर से। हाँ ये आ गया नूर। मैं आपको बताऊं जरा इस शेर को आला हजरत के मैं थोड़ा आसान करूं। हमारे हुजूर अव्वल भी है, हुजूर आखिर भी है, हमारे हुजूर जाहिर भी है, हमारे हुजूर बातिन भी है। इसलिए तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं। लेकिन सुनो, अब एक ये नोट आप ये देखिए, फलासफा बोले तुम अपने हुजूर को अव्वल भी मानते हो, अपने हुजूर को आखिर भी मानते हो, इसका नोट का अव्वल ये मानो और आखिर ये मानो, जो अव्वल हो सकता वो आखिर नहीं, जो आखिर हो सकता वो अव्वल नहीं। फलसफी बोले तुमने अव्वल और आखिर माना कैसे, तो आला हजरत तो फिर आला हजरत। बेवकूफ, अगर अक्ल होती तो आज ये इतराज करने से पहले फलसफे से तू इस्तीफा दे देता, फलसफे से इस्तीफा दे देता। तुझे पता ही नहीं है जो तूने इतराज किया क्या अव्वल और आखिर, जो तू सीधा एक लकीर बना के खड़ा हुआ टहल रहा है, इसको यूं गोल कर दे। लेकर एक पेन लो, उसकी निब लो, यहाँ से नुक्ते से वो गोल दायरा बनाना शुरू करो और उसी नुक्ते पर गोल दायरा लाकर खत्म कर दो। अव्वल क्या है वही नुक्ता, आखिर क्या है वही नुक्ता। हमारे हुजूर अव्वल भी है, हमारे हुजूर आखिर भी है। अब एक और बात सुनो, सिमत पूछने वाले पूछते हैं तो अब इस जो गोल दायरा बनाया, जो बनाने वाला है वो तो जानता है अव्वल और आखिर क्या है, लेकिन जब गोल दायरा आ गया और बनाया मैंने गोल दायरा, मौलाना हामिद साहब से आप पूछेंगे तो मौलाना हामिद साहब कहेंगे हमें तो पता ही नहीं इसका अव्वल क्या है और इसका आखिर क्या है। इन दोनों असरार को, इन दोनों रुमूज को निगाह में रखो। अब आला हज़रत का शेर सुनो, कमाने इनका के झूठे मुक्तो, तुम अव्वल और आखिर की फेर में हो, मुहीद की चाल से तो पूछो किधर से आए। ये आया हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारे हुजूर आगे बढ़े, झलक कुर्सियों ने पाई, हवा भी दामन की फिर ना पाई, झलक कुर्सियों पे आई, जोर से हवा भी दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही पूरे थे, बारात में। और एक बारात तो और भी जाना है, जहाँ पर अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, बारात और होना है। तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमा, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, यहाँ तो सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, यहाँ बारात में होश ही उड़े थे, लेकिन गुनाहगारों का मामला ये फरमा, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बारात। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा खाने वाली। और जानते हो थानों का मामला क्या होता है, अगर आप थाने में पकड़े गए, बात आ गई, बात से बात आती है, डीएम साहब का फोन करवा दिया गया, अरे फौरन छोड़ दी, मिनिस्टर साहब से ताल्लुकात छोड़ दिया, और उस थानों में किसके ताल्लुकात काम आएंगे, अरे आला हजरत से ताल्लुकात है, सुन्नत से ताल्लुकात है, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से ताल्लुकात है। वहाँ के थाने वाले डीएम और एसपी की मानते हैं, और वहाँ के थाने वाले वज़ीर आज़म की मानते हैं, वहाँ के थाने वाले ख्वाजा हिंदुस्तान की मानते हैं, वहाँ के थाने वाले आला हज़रत फाज़िले बरेलवी की मानते हैं, वहाँ के थाने वाले शेर सुन्नत की मानते हैं, वहाँ के थाने वाले मुशाहिदे मिल्लत की मानते हैं, वहाँ के थाने वाले अल्लाह वालों की मानते हैं। आज ताल्लुकात बना लो, कल थानों पर काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शेर सुन्नत, फैज़ाने
कर बचाना तो फिर उनका मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। जोर से कह दो, वरना तो उन लोगों का मामला भी सुनो। तो उस्ताद जमल फरमाते ये तो हम होंगे, थाने पर आ जाएगी बात गौसे आजम ने, हाँ छोड़ो कहाँ पकड़ा है इसे, छोड़ो कहाँ पकड़ा है इसे। हाँ तो लेकिन और भी तो होंगे, हाँ जो कहते थे सिर्रिक सिर्रिक, जो कहते थे नहीं जाओ गरीब नवाज के वहाँ वो भी होंगे, जो कहते थे नहीं जाओ आला हजरत के पास वो भी होंगे, जो कहते थे गौसे आजम से मांगो तो शिर्क हो वो भी होंगे। तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं हश्र में एक का मुंह तकते फिरते हैं। हाँ आप जानते हो अगर डीएम साहब का फोन आ गया, आपकी गाड़ी छूट गई और जिसके ताल्लुकात डीएम साहब से नहीं होते हैं वो मुंह तकता है, अरे ताल्लुकात हमारे भी होते तो आज छूट जाते। वहाँ का मामला वहाँ के थाने में जब पकड़े जाएंगे तो हश्र में एक का मुंह तकते फिरते हुए अधूर आफतों में फंस गए, उनका सहारा छोड़ा। हमने कहा इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो यहाँ पर फंसे, इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो कब्र में फंसे, इमाम अंबिया का सहारा छोड़ा तो फिर आग पर फंसे। हकीकत ये है वहाँ भी समझा ही नहीं कि इमाम अंबिया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामुल अंबिया होना ये राज भी मेराज में खुलना था। सुभान अल्लाह, राज भी मेराज में खुलना था। हाँ जानते हो मस्जिद अक्सा, जोर से कह दो। अव्वली तमाम अंबिया किराम का मजमा है, लेकिन मुसल्ले इमामत पर जब कोई जात जलवा फिगल होती है तो हमारे और आपके हुजूर जलवा वहाँ से तशरीफ ले गए। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हाँ वहाँ से पहले आसमान आसमान दुनिया की तरफ अल्लाहु अकबर तशरीफ ले गए। और रिवायत में आता है जब हुजूर तशरीफ ले गए आसमान दुनिया पर, और आसमान दुनिया यानी कि वो आसमान जो यहाँ से हमें दिखता है, दरवाजे पर जब हुजूर तशरीफ ले गए हजरत जिब्रील अमीन जो हुजूर के हमरकाब थे खटखटाया दरवाजा। कौन सा? पहले आसमान का दरवाजा खटखटाना जानते हो? दरवाजे वाला तो अंदर होता है ना। मौलाना हामिद साहब के घर पर हम आए, कहीं पता ना हो, जब पता हो कि आने वाले हैं, वक्त का ना पता हो किस टाइम आएंगे। अब मैंने दरवाजा खटखटाया, ये पूछे कौन, मैं कहूँगा मैं। अरे हजरत आप। और ये सवाल होगा, ये सवाल है कैसे हजरत? ये सवाल बतौर सवाल नहीं है, ये बतौर खुशी है सवाल, खुशी का ही ये सवाल। अब सुनो, जब जिब्रील अमीन पहुंचे और अल्लाहु अकबर आसमाने दुनिया पर खटखटाया, अंदर से आवाज आई मनंता कौन है? तो इधर से आवाज दी गई अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूँ। फिर आवाज आई तो आपके साथ में कौन है? तो कहा दोनों जहान के आका है। तो कहा इसीलिए तो रब ने इस ड्यूटी पर खड़ा किया था कि महबूब की सवारी आने वाली है, इस्तेक़बाल के लिए मलाइका जाओ, मलाइका की जमात इस्तेक़बाल के लिए गई है। पहले आसमान पर इस्तेक़बाल के लिए मलाइका की जमात है, दूसरे आसमान पर इस्तेक़बाल के लिए मलाइका की जमात है, तीसरे आसमान पर इस्तेक़बाल के लिए मलाइका की जमात है। सब इस्तेक़बाल कर रहे हैं। आलम सबका यही है कि झलक सी कुर्सियों की खुला तो वो सवारी गई, जोर से कह दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही उड़े थे। सुनो, अब वो मकाम आया जिसके बारे में अल्लाहु अकबर उलमा ने बड़ा तवील कलाम किया, बड़ा तवील कलाम किया है।
حضرت جبریل امین فرماتے بال برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کی مجھے میرے پلوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا۔ اے جبریل کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو، کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو۔ وہ مقام خلیل اللہ کا تھا جہاں ہم نے کہا تھا کوئی تمنا ہے تو بتائیے، یہ مقام حبیب اللہ کا ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو تمنا یہ کہی جاتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں محبوب جب پل صراط سے آپ کی گناہگار امت گزریں گے، وہ پل صراط ادق من الشعر وحد من السیف، تلوار سے زیادہ جو تیز ہوگی اور بال سے زیادہ جو باریک ہوگی، اس کے جب آپ کی گناہگار امتی گزرے، جب گزرے تو اجازت مرحمت فرما دی جائے، اجازت دے دی جائے ان کی خدمت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تیرے گھر کا دربان ہو جبریل اعظم، تیرے گھر کا دربان ہو جبریل اعظم، حضور اجازت دے دی جائے پل صراط پر میں پر بچھا دوں، میرے گھر کے اوپر سے آپ کی امت کا گزر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اختیار تو مطلب دیا تھا سبحان اللہ۔ مولانا صاحب صاحب، مولانا اقبال صاحب، عقیل صاحب، اختیار تو مطلب دیا تھا، یہ کام مانگا جبریل امین نے، حضور نے کہا تھا جو چاہو مانگو، یہ کیا مانگا؟ تو علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہیں مانگ سکتا۔ آپ آئے، مانگنے والا آیا، مولانا حامد صاحب کو دعائیں دی تو مولانا حامد صاحب نے 10 روپے نکال کے دیے، اور آنے والے مانگنے والے نے ان کے بچے اور پوتوں کو دعائیں دی، انہوں نے 50 روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سے زیادہ اپنے بچے اور پوتوں سے محبت۔ حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ محبوب وہ محبوب ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو لب پر کوئی کرانا تھا تو رب حبیب امتی، میرے رب میری گناہگار امت کی گناہوں کو بخش دینا۔ جب قبر انور کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، اللہ اکبر، گنبد خضرا کے ٹھیک نیچے جب آپ کو رکھا گیا، اللہ اکبر، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے لبھائے مصطفیٰ علیہ السلام پر کان لگائے تھے تو آواز یہی آتی تھی رب قبلی امتی، رب قبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا۔ جبریل امین جانتے تھے محبوب کو کوئی چیز اگر محبوب ہے تو وہ اپنی امت ہے، اور امت کی خدمت مانگ لو تو عطا کرنے والے محبوب جانے اور پانے والے جبریل۔ لیکن سنو، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یہ تو بات ہو گئی، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب جب اس واقعے پر عشق و محبت کے اپنے وقت کے امام کی نظر کی تو وہ ان کے امام کے عشق میں کچھ الگ ہی رنگ و بو کے کچھ الگ بوٹے کھلائے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت کی نظر میں جب یہ روایت آئی تو عشق اعلیٰ حضرت کہنے لگا، عشق فاضل بریلوی کہنے لگا، حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ پل صراط کے دہانے پر رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوں گے، اے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، ہمارے لیے تو احسان کوئی ہے تو محبوب رب العالمین کا ہے، ہمارے لیے احسان ہے تو امام الانبیاء کا ہے، حضور آپ کے رہتے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، عشق احمد رضا کا کہنے لگا پل سے اتارو رات گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو ایسے گزرے ایسے گزرے ایسے گزرے کہ پر کو خبر نہ ہو، اس لیے محبوب ہے ان کا احسان ہمارے لیے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زور سے کہہ دو نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ کلیم طور نہا پر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر،
वो अरब का नाका सवार है, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का। जरा जोर से कह दो। आगे सुनो, कितनी नमाजें मिली? 50। और हुजूर के सदक़े में कितनी हो गई? 5। वरना कि अगर तबानी सुनोगे तो इसमें बहुत तवील कलाम, लेकिन मैं आपको जिस नुक्ते पे लाना चाहता हूँ वो सुनो। रब आलिमुल गैब व शहादा है, जानता था कि नमाज इतनी होंगी और महबूब बार बार तशरीफ लाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, इतनी होना है तो मौला पहले ही उतनी दे दी होती। उलमा कहते हैं इसके अंदर वो राज है जिन पे तो हमारी नजर गई, और वो राज जिन पे नजर नहीं गई वो मैदान महशर में कल देखना खुलने है। उलमा बयान करते हैं महबूब से बार बार मुलाकात भी तो होना थी। जरा जोर से कहते हैं, फिर महबूब के पावर को, महबूब के इख्तियार को, महबूब की ताकत को भी तो दिखाना था। इबादत मेरी, सजदा मेरा, बंदगी मेरी, रुकू मेरा, तशहुद मेरा, क़याम मेरा, और कमी मेरा महबूब करवाए। मेरा महबूब करवाएगा तो वो दूल्हा की रात बरात थी, अल्लाह अकबर फरमाया जाता है महबूब सवाब 50 ही कर दूंगा अगर के उम्मत 5 करेगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाहु अकबर का आलम ये है कि फरमाया जाता है, इरशाद फरमाया जाता है, अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना गाइबुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा अंसितु व अना शफीउहुम इज़ा जइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमा इज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमा इज़िन बियदी। हुजूर फरमाते हैं एक रोज वो आएगा अल्लाहु अकबर जिस रोज तक उठेंगे अपनी कब्रों से, लेकिन सबसे पहले कोई कब्र से उठने वाला होगा, और उस रोज अव्वलीन व आखिरीन अपनी कब्रों से उठ कर निकलेंगे। तो हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु, जब तुम कब्र से निकलोगे तो उस मजमे की कोई क़यादत कर रहा होगा, उस मजमे में सबसे आगे कोई चल रहा होगा। तो हुजूर फरमाते हैं उस मजमे की क़यादत मैं कर रहा होगा। आगे इरशाद फरमाते हैं व अना खतीबुहुम इज़ा अंसितु, जब तुम खामोश हो जाओगे बारगाह मौला के अंदर हिम्मत नहीं होगी किसी की ज़बान खोलने की। हम कौन होते हैं? हज़रत आदम कहेंगे, हज़रत ईसा कहेंगे, हज़रत मूसा कहेंगे, अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हमने रब को आज जितना जलाल में देखा है उससे पहले नहीं देखा है। सब कहेंगे इज़हबू इला गैबी, इज़हबू इला गैबी। लेकिन सुनो हुजूर फरमाते हैं जब अंबिया खामोश होंगे, जब औलिया खामोश होंगे, जब सब खामोश होंगे तो मकाम महमूद से एक खिताबत होगी, मकाम महमूद से एक तकरीर होगी। तकरीर तो फिर उस रोज होना है, जलसा तो फिर उस रोज होना है, मजमा तो उस रोज लगना है जहाँ अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। जो गुजर गए वो भी होंगे, जो है वो भी होंगे, जो आने वाले हैं वो भी होंगे। मकाम महमूद होगा, महबूब वहाँ पर होगा, खिताबत होगी। महबूब फरमाते हैं खतीबुहुम, उस दिन मैं खतीब होऊंगा, तुम तमाम समाअत करोगे तो मैं खतीब होऊंगा। इरशाद फरमाया जाता है आइदुहुम अल्लाहु अकबर इज़ा वफदु, जब तुम वफ्द की शक्ल में जाओगे सुभान अल्लाह, ज़हन में आ गया, बात ज़हन में आ गया, वफ्द की शक्ल में जाओगे जोर से सुभान अल्लाह। वहाँ सब होंगे, अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, और वफ्द की शक्ल में जाएंगे और हाथ लेकर मांगते होंगे, हाथ लेकर झोलियां फैलाकर मांगते होंगे। हम तो मांगेंगे वो भी मांगेंगे जो दुनिया में शिर्क कहते कहते नहीं थकते थे। मांगेंगे अता कर दीजिए, अता कर दीजिए। पता क्या चला? रब की
रहमतों ने बता दिया, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, दुनिया में ना मांगो तो ना मांगो, लेकिन महबूब के आगे हाथ फैला के खड़ा तो करूंगा। महबूब के आगे हाथ फैला कर खड़े तो हो गए। आज ना सही कल मैदान क़यामत में खड़े हो गए, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओगे। हज़रत ईसा आगे बढ़ो, मूसा वहाँ भी तो खड़ा होना है जहाँ की हसद लिए बैठे, वहाँ भी बच्चे तलब लेकर खड़ा होना है। हाँ, वहाँ भी खड़ा होना है। मदद की भीख मांगे फिर रहे हैं वो भी महशर में, जिनको इस्तिआनत पर अदावत की क़यामत की। ये भूला सुबह का मगर न शाम को लौटा, मगर न देता ये भी कहीं ताबीर रहमत की। ये ख्वाहिश है तेरी फारा सबों में इनकलाब आए, चरागों से सहर होती नहीं है ऐसी जुल्मत की। इलाही सदका ए मूसा वो सामाने नजर देना, मलाइक बात छेड़े जब अदालत में ज़ियारत की, मलाइक बात छेड़े जब अदालत में ज़ियारत की। नहीं कुछ शोर होगा और लुटाना जा सहाबा का कि परवानों ने सीखी है यहाँ से शान हिकमत। मांग रहे होंगे अता कर दिया जाए। हाँ, इसीलिए तो उस्ताद रमन फरमाते हैं एक एक का मुंह तकते फिरते गए आफतों में फंस गए, उनका सहारा छोड़, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। और वहाँ पर हम जैसे गुनाहगार जो उम्मती हैं, जो उम्मत दावत में नहीं उम्मत इजाबत में आते हैं, उनके लिए हुक्म होगा अना लहा, मैं तो हुई इसीलिए। फरमाते आप उस्ताद हो, बस उनके आने की तो देर है, खुद वो गिरकर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और पावर ये है कि गुज़रते दिन है खुदा ने दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, महबूब छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे। कोई करीब तराजू, कोई नबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुआई है या रसूल अल्लाह, तो कोई अल्लाहु अकबर, अलग अलग मकामात से आपका आवाज देता होगा। हजार कान पैदा नर्म पांवों पर पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। वो बात दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूर में फिक्र तरदद में हमें क्या फिक्र है, हमारे लिए तो नूर है। लेकिन सुनो, 12वीं शरीफ और 11वीं शरीफ में नारा लगाने वालों, नारे तो वहाँ भी लगना है, तो वहाँ भी एक बड़ी शान और शौकत का उठना है। जोर से कह दो, बड़ी शान और शौकत का जुलूस उठना है। फरमाया जाता है कि दूल्हा की सवारी चलेगी, अव्वलीन और आखिरीन होंगे, हम जैसे गुनाहगार भी होंगे, हम जैसे गुनाहगार भी होंगे। और जब दरवाज़े जन्नत पर एक शान एक शौकत के साथ मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे, रिवायत में आता फयक़ूलुल खादिम, कौन है आप? दरोगाए जन्नत दरवाज़े जन्नत के पीछे से आवाज देंगे, कौन है आप? इधर से आवाज आएगी, हम वो हैं जिनके सदक़े जिनके धोवन से जन्नत बनी है। जो तलबल का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दुनिया की पाई इकरम वो फूल गुलजारे नूर के थे। इधर से आवाज आएगी तो रिज़वान दरोगाए जन्नत कहेंगे। हदीस पाक में आता है बिका उम्र में अल्लाह अब्बा अहदन अल्लाहु अकबर ले अहदिन गैरा, आपके अलावा किसी एक के लिए ये दरवाजा जन्नत का खोलने की इजाजत उम्र को अल्लाह गैरा का हुजूर आपके अलावा ये दरवाजा किसी के लिए खोलने की इजाजत नहीं थी।
आला हज़रत पुकारने लगे जाए ना जब तक गुलाम, वो तो है सब पर हराम, तो है सब पर हराम, मुल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों करोड़, जहाँ करीब होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मतियों के साथ होंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, हजरत ईसा भी होंगे, तमाम अंबिया होंगे। लेकिन याद रखो किसी उम्मत पर अगर अंबियाए किराम भी असर करेंगे तो वो उम्मत हमारे हुजूर की उम्मत होगी, जब वो उम्मत हुजूर की उम्मत होगी वो उम्मत मोहम्मदिया होगी। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं ये नबियों का असर करना कोई हमारी कोई इसके अंदर खूबी नहीं है, बल्कि सिर्फ फकत वजह ये है निस्बत हो गई है हमें महबूब रब्बुल आलमीन से, निस्बत हो गई है हमें इमाम अंबिया से, हमारी वजह से अल्लाहु अकबर कोई खूबी नहीं है, बल्कि हमें निस्बत जो हमें डालते हुई है उस निस्बत की वजह से अल्लाहु अकबर अंबियाए किराम कहेंगे उम्मत कोई है तो हुजूर की उम्मत है, उम्मत कोई है तो नबी की उम्मत है। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं माहो शुमा, तो क्या हम और आप हमारी क्या गिनती क्या शुमार होते कलीले जलील को कल देखना, कल मैदान क़यामत में देखना, जहाँ हज़रत मूसा भी होंगे, जहाँ हज़रत ईसा भी होंगे, जहाँ हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहिम भी होंगे, जहाँ हज़रत रूहुल्लाह भी होंगे। लेकिन अगर तवक्को किसी के नजर की इब्राहिम खलीलुल्लाह करेंगे तो आला हज़रत फरमाते हैं कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है, मेरे हुजूर से नजर की तवक्को इब्राहिम खलीलुल्लाह करेंगे, मेरे हुजूर से तवक्को नजर की अंबियाए कामिलीन करेंगे। पता क्या चला, पता ये चला कि जन्नत तो जन्नत बल्कि मैदान महशर फकत इतना सबब है इनकाते बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से कहते हो अंधे तो नहीं हो गए हो। हाँ, सुनो अब आओ उस रास्ते पर जिस रास्ते के सदक़े में मीलाद जिसके सदक़े में हमारी नमाज है, जिसके सदक़े में हमारा ईमान है। जरा जोर से कहते हजरत शेख आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत की सदी के पहले के मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अपने मकतूबात में एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं। जरा जोर से कहते हैं एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं अपने मकतूबात के अंदर। तमन्ना देखो, फरमाते हैं हर कसे दर दिले तमन्नाए अमरीज व तमन्नाए ई फकीर शिद्दत व गिल्ज़त नमूदन बर आदाए दियत। हे चमले असी अमल महबूब तरनीस। सुन ली तो मतलब तो असी अमल महबूब नज़्दे आला महबूब तरनीस। फरमाते हैं, कौन फरमा रहे हैं? मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान कि हर किसी के दिल के अंदर एक मामले की तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि मैं ये कर दूंगा। कोई गाड़ी की तमन्ना करता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो जाए, कोई मकान की तमन्ना करता है, कोई दुकान की तमन्ना करता है। लेकिन फरमाते हैं नबी के मोहब्बत करने वाले तो तमन्ना किसी और की करते, किसी और की करते। फरमाते हैं शेख हर किसी के दिल के अंदर एक चीज की तमन्ना होती है, वो तमन्नाए ई फकीर। और इस फकीर की अगर तमन्ना कोई मुझसे पूछ ले तो मेरी तमन्ना ये है कि शिद्दत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से करना है। मतलब वहाबी से शिद्दत मेरी तमन्ना है, देवबंदी से शिद्दत करना ये मेरी तमन्ना है, सलफी से शिद्दत करना ये मेरी तमन्ना है, राफिदी से शिद्दत करना ये मेरी तमन्ना है, अल्लाहु अकबर शिया से शिद्दत करना ये मेरी तमन्ना है, मेजरियों के ऊपर कहरे हतक बनकर उनके ऊपर गरजना बरसना ये मेरी तमन्ना है।
नजदीक कोई भी तमन्ना इससे महबूब है ही नहीं। अरे अरे हम तो चले थे कि रब हमसे राजी हो जाए, अरे अरे हम तो चले थे कि महबूब को राजी कर ले। मौलाना हामिद साहब चले थे कि महबूब खुदा को राजी कर ले, ये चले थे महबूब खुदा को राजी कर ले, वो चले थे महबूब खुदा को राजी कर ले। और शेख फरमाते हैं महबूब खुदा को राजी करना अगर चाहते हो तो वहाबियों की, देवबंदियों की, नजदियों की, सल्फियों की ऐसी कैसी करते रहो, उनकी वाट लगाते रहो, उनकी विलयन लगाते रहो। अब हमने पूछा आला हज़रत आपकी तमन्ना क्या है? मुझे आपसे पहले स्टडी की तमन्ना पता चल गई तो आला हज़रत बोले बाबा अमाल के अंदर तो है मुक़ल्लिद, अब बाबा अकाइद के अंदर हम किसी के मुक़ल्लिद नहीं है। तो तुमने हमसे न पूछा है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, की क्या मोहब्बत कीजिए, क्या मोहब्बत कीजिए, मैं चल जाए बेदीनों के या रसूल अल्लाह की कसरत। जरा जोर से कह दो। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। इसके बाद हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी, आप जानते हो रद्द वाबिया करना बता दिया कि इतनी बड़ी इबादत है, तुम कहोगे वहाबी ऐसा वैसा, तुम्हें सवाब मिल रहा है। इबादत है और वो इबादत है कि रब के नजदीक फरमाते हैं जमाने कोई अमल मैंने तो नहीं देखा कि रब को उससे ज्यादा महबूब हो। ये मुजद्दिद अल-फैसानी कह रहे हैं। जरा जोर से कह दो। और इसकी नक़्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह है, कभी और वक्त आएगा तो पेश करी जाएगी। लेकिन सुनो आला हज़रत भी वही कहे बोले। और फिर आ जाओ शेर बेशे सुन्नत की बारगाह के अंदर। जरा जोर से कह दो। शेर बेशे सुन्नत की जब बारगाह में आओगे तो शेर बेशे सुन्नत को उसी रंगो ढंग में ढला हुआ पाओगे जिस रंग में आला हज़रत थे। मिल्लत की बारगाह में आओगे तो वही रंग रंगे रंगबी मिलेगा। जब आप शेर हिंदुस्तान की बारगाह में आओगे तो वही रंग रंगे रंगबी मिलेगा। जब आप मासूम मिल्लत की बारगाह में आओगे वही रंग रंगे रंगबी मिलेगा। जब आप मासूम मिल्लत की बारगाह में आओगे वही रंग रंगे रंगबी मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये है इन अल्लाह वालों ने बहुत फतवे दिए हैं, इन अल्लाह वालों ने बहुत जिहाद किया है, लेकिन याद रखो इन अल्लाह वालों की सबसे बड़ी कोई काविश है तो वो काविश ये है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन का जीना हराम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। और भगवाने अभी आपने सुना मुजद्दिद अल-फैसानी, तो ये तो बहुत नेक अमल है। अब सुनो आगे इरशाद फरमाते हैं ज़ेरा के तवल्ला बेतबर्रा नीज मुमकिन। जोर से कह दो। फरमाते हो मोहब्बत के दावेदार हो, इधर आओ, इधर आओ। मोहब्बत के दावेदार हो, इधर आओ। मोहब्बत बगैर महबूब के दुश्मन का रद्द किए फरमाते मुमकिन ही नहीं है। कहाँ के दावेदार हो, कहाँ के दावेदार हो? तो अब मैं कहना चाहता हूँ, कहने वाले कहते हैं खानकाए हज़रतिया वाले आते हैं, हालांकि खानका वाले आते हैं रद्दे वहाबिया, रद्दे वहाबिया, रद्दे वहाबिया। मैंने कहा रद्दे वहाबिया तुम समझे नहीं, रद्दे वहाबिया भी किस्मत वालों को मिलता है, ऐसे ऐसों के हाथ में नहीं आता रद्दे वहाबिया। इसकी ये खास ड्यूटी महमूद महबूब की अल्लाहु अकबर नामूस के लिए लगाई जाती है। तो खास ड्यूटी पर मुकर्रर भी खास लोगों को किया जाता है। रेड सिक्योरिटी जानते हो क्या है? रेड सिक्योरिटी फलां को मिल गई है। मतलब तो ये कि जो थाने में पुलिस वाले थे क्या वो बंदर थे? अब वो भी तो सिक्योरिटी कर लेते। नहीं, कोई खास ही मामला है उनका। उनकी निगाहें चील की तरह होती है, उनकी निगाह ऐसी होती है और चश्मा लगा कर चारों तरफ
देखते हैं। तो सुनो, ये दुनियावी ड्यूटी है, और महबूब की इज्जत पर जब ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो फिर वो वहाँ भी तो खास ही लोगों को चुना जाता है। तो शेर पे सुन्नत मदर आला हज़रत का एक मैंने वाक़या सुना, फरमाया बाबू रद्दे वहाबिया करने की बात नहीं है, ये तो करम है उनका कि किससे करवा ले। ये किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, उन महबूब के दुश्मनों का रद, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, नजदी हो, नेत्री हो, और आज का नाम लिहाज हो ततहीर खबीर मरदूद, हर एक फिरके का, हाँ, और वो गुमराह घर का, हर एक का, तो वो भी खास ही लोग तो करेंगे। हाँ, तो ड्यूटी पर होंगे। लेकिन सुनो, बात आ गई, बात से बात निकलती है, तो सुनो, फरमाया कि तवल्ला बेतबर्रा नीज मुमकिन, बगैर तबर्रे के। तबर्रा जानते हो? कहते हैं इनका काम ही तबर्रा करना है, इनका काम ही तबर्रा करना है। और शायद कहते हैं ये तबर्रा अगर महबूब के दुश्मनों पे करोगे तो ये तो इबादत हो जाएगी, ये तो इबादत ठहरेगी। मतलब क्या हुआ बाबू? मतलब ये हुआ, आप अपनी जिंदगी का जायजा लो तो आपको पता चलेगा, आप खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को अल्लाहु अकबर क्या क्या जाम इसको मोहब्बत के भर भर कर ना पिलाए गए, और आपको उस खास ड्यूटी की जानिब राग़िब किया गया। आपको अगर वहाबी से बचाया गया तो मतलब खुदा की खा के कहता हूँ, वल्लाही अजीम मैं आपको बताता हूँ, वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया देवबंदी से राबता मत रखो तो वो आपके ईमान के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया कि सल्फी से राबता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। अगर आपसे कहा गया कि राबती से राबता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। वरना आजकल का दौर तो बाबू ये है, हमने हर एक मामले में लोगों को सीरियस देखा, लेकिन दीन के मामले में लोगों को सीरियस नहीं देखा। वो अपना मोबाइल और अपनी अंगूठी छोटी सी चीज है, उसके मामले में भी सीरियस है कि कहीं गुरु करे तो हाथ छूट ना जाए, उसको ऊपर भी उसकी तवज्जो है, लेकिन उसे दीन की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है दीन की। बाबू अपना ईमान बचाओ। मेरे ध्यान में बातें बहुत है, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या बातें आपको छोड़ूं, लेकिन याद रखो बाबू, आला हज़रत इमाम मोहब्बत ने जो हमें और आपको तरीका दिया, और शेरबे से सुन्नत मज़हरे आला हज़रत इमामुल मुनाफ़िरीन ग़ैरुल मुनाफ़िक़ीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना ने जो गाँव-गाँव करिया घूमकर मुनाज़रों में जाकर जो जगह वहाबियों को पछाड़कर जो ईमान तबलीग ईमान को मोहब्बत करी है, वो अल्लाहु अकबर वही रास्ता है जो रास्ता आला हज़रत का है, ये वही रास्ता है जो रास्ता शेख मोहब्बत अल्लाहु अकबर अहमद सरहमदी फारूकी का रास्ता है, कोई अलग रास्ता नहीं है। हाँ, ये वहाबी तो चाहते ही है कि हुजूर का जिक्र मिट जाए, हुजूर का जिक्र तो नहीं मिट सकता, हुजूर का जिक्र नहीं मिट सकता। क्यों? इसलिए कि रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बड़े आँख हो जाए जल जाने वाले, ये हुजूर की राज है, आला हज़रत हुजूर के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे सरकार गौसे आज़म का मामला ये है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जो बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा अल्लाह का जिक्र का है साया तुझ पर, ऊंचा है तेरा है वाला तेरा। मैंने कहा चांद और सूरज अगर हुजूर से करीब होकर चमक सकते हैं और वो चांदनी ऐसी पा सकते हैं कि वो नूर बन जाए, कयामत तक वो चांद और सूरज अपनी तवानाई के साथ चमकते रहे। मैंने कहा सुनो, चांद अगर लम्हे भर के लिए आया, सूरज अगर लम्हे भर के लिए आया, लेकिन याद रखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी तो हुजूर के पास रहे हैं। जब चांद चमका सिद्दीक़ अकबर भी तो चमकना थे, हज़रत फारूक आज़म भी तो चमकेंगे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु भी तो चमकेंगे, हज़रत मौलाए कायनात भी तो चमकेंगे। जब वो हुजूर की सोहबत से चमक सकता है तो चमके तो फिर अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी चमके हैं, चमके तो फिर हज़रत इब्न मालिक भी चमके हैं, चमके तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी चमके हैं, चमके तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी चमके हैं, चमके तो
کے اندر وہ نور جب چلا تو چل کے آیا، تبیہ تابعین کے اندر وہ نور جب چلا تو چل کے آیا، ائمہ مجتہدین کے اندر وہ نور چلا، جو نور نبی کا تھا، جو نور آسمان کو روشن کیے ہے، جو نور چاند کو روشن کیے ہے، وہ نور چلا تو صحابہ سے امام اعظم روشن ہوئے، امام اعظم کے روشن ہوئے تو اللہ اکبر، تبیہ تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، اور ان سے اعلیٰ مقام آتے ہیں، ہم روشن ہوئے۔ نور تو ہمارے حضور ہی ہے، نور تو ہمارے حضور ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبانی، یہ نور ہم سے تم لے لو کہ اب تم بھی چمک جاؤ، اور جب تم چمک جاؤ گے تو عالم یہ ہوگا جو مرضی ہماری ہے، جو چاہتے ہم ہے، جو چاہتے شیر امت ہے، جو چاہتے مشاہد ملت ہے کہ قبر میں لہرائے گے ساعت تک میں نور کے جلوہ فرما ہوگی رسالت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یاد رکھو، اس لیے کہ وہ نور کا غسالہ جب وہاں ملا تو وہ نور اعلیٰ حضرت اسی لیے تو اپنے آخری وصیت کے اندر یہی تحریر فرماتے ہیں، حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ نور ہم سے تم لے لو۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دو شعر میں اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہے۔ پہلے سبحان اللہ کہہ دو، آ کر کہہ دو۔ فرماتے ہیں کہ جس دل میں یہ نہ ہو، نور الہ کیا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، کیا قدر اس خمیر محمد ہے؟ گڈھا کھلے گا زمین میں دفن، ختم کہانی، کیا قدر؟ آپ فرماتے ہیں نور کیا ہے؟ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ پہلے شعر میں کیا کہا؟ شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو۔ اب دوسرے شعر میں اس کا نور الہی کی تشریح کر رہے ہیں۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حضور کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حضور کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ کو خرچی ہو، جس دل میں یہ نہ ہو وہ سنور کی جگہ تو ہو سکتی ہے، وہ بدہے کی جگہ تو ہوگی، لیکن جس دل کے اندر اگر نبی کے نور کا نور نہ ہوگا، نبی کی محبت نہ ہوگی، اس کو تو ہم دل بھی نہیں کہتے۔ الہ کیا ہے؟ محبت حضور کی، محبت حضور کی۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت حضور کی، چاہتے یہ ہیں اب ہم سے تم لے لو اور تم بھی روشن ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا فرماتے ہیں؟ اب اسی کے آگے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی توجہ ہیچ عملے پہ نظر رہنا چاہیے، کوئی عمل اس عمل سے محبوب نہیں۔ اب آخری وصیت کے اندر جس کو بھی اللہ انتقال سے پہلے، دو عقوق پر اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے نا، انتقال سے پہلے یہ وصیت نقل کرنا ہے، ان کا مرائے تو بولا لاہور سے سردہ لاؤ، سردہ کھاؤں گا تب مروں گا۔ ایک مرا لکھنؤ سے کپڑی لاؤں گا تب مروں گا۔ جانتے تھے بہت لگنے والی ہے تو کھانا نہیں کھا لو، لیکن ہمارا ایمان نہیں جا رہا۔ ذرا زور سے کہہ دو۔
जा रहा है कलम लाकर वसीयत उस वक्त भी हमारे और आपकी ईमान की पड़ी है, ईमान की हिफाजत की फिक्र है। उस वक्त फरमाया जा रहा है कि जिसको भी अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना भी तौहीन करता पाओ, फिर वो तुम्हारा बाप क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा अजीज क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारा करीब क्यों ना हो, उसको अपने अंदर से धूप की मक्खी की तरीके से निकाल कर बाहर फेंक देना। यही वो नूर है जो अल्लाह अकबर नबी से मोहब्बत और नबी के दुश्मनों से अदावत भी सिखाता है। यही वो नूर है जो तुम्हें एक रास्ते पर लेकर जाता है। यही वो नूर है जो कहता है जब तरकीब कम किए। यही वो नूर है जो कहता है एक पैर पकड़ना लेकिन मजबूती से पकड़ना। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे पास दिल एक है, उसके अंदर मोहब्बत भी एक ही होना चाहिए। होते तो 4 5 6 तो आए जिस्म के अंदर दिल, तो मैं कहता एक दिल तो आप अपने घर में लगा लो, एक दिल आप अपनी औलाद से लगा लो, एक दिल आप दुनिया के लिए वक्त कर दो। लेकिन नहीं, जिस्म एक है, उसमें दिल एक है। तो याद रखो उस एक दिल के अंदर एक ही मोहब्बत नबी की होगी, एक ही मोहब्बत होना है। दिल एक है, मोहब्बत एक रब की, दिल एक है, मोहब्बत एक महबूबा खुदा की, दिल एक है, मोहब्बत एक सहाबा की, मोहब्बत सहाबा की, दिल एक है, मोहब्बत रसूलुल्लाह की, दिल एक है, मोहब्बत उसको दीन की जानिब वक्फ कर देना है। इसलिए कि आला हज़रत ने तो हमें समझाया हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जरा जोर से कह दो कितनी बातें समझ लो, 2 बातें समझ लो। हम आए जहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बातें समझ लोगे ना बाबू, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, जब आए हुजूर के लिए, उठना भी हुजूर के लिए, तो फिर जिंदगी हुजूर के लिए, जिंदगी हुजूर के लिए। कह दो आए यहाँ तुम्हारे लिए भी वहाँ तुम्हारे लिए, सब हुजूर के लिए। याद रखो बाबू, यही असल है, यही फूल है, यही तमाम है। मैं आपको बताऊं, फरमाया जाता है, अब एक आखिरी हदीस पाक सुन लो और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। फरमाया जाता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर से बड़ी बात है, हुजूर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मन अहब्बा लिल्लाह व मन अबग़ज़ा लिल्लाह, नंबर 2, वमन आता लिल्लाह, नंबर 3, वमन मना लिल्लाह। ये 4 है तो तुम्हें जिस पर अमल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान लगे सब कौन फरमा रहे? हाँ, ये हमारे और आपके हुजूर फरमा रहे हैं। गाड़ी हम अपने आ रहे थे सफर में, ये हमारे हाफिज उमर साहब बात कर रहे थे कि ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये रजनी होना चाहिए, वो रजनी होना चाहिए। तो कोई अर्ज कर रहा था, हम पहले से वो बुज़दिल है, तुम अखलाक 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 करके उसको और बुज़दिल बनाओ। अखलाक रसूलुल्लाह का अखलाक बदरो हुनैन वाला भी तो बताओ, रसूलुल्लाह का अखलाक फिर वो भी तो बताओ। फला इब्ने फला निकाल मस्जिद से, निकाल। सुभान अल्लाह। सरकार ने मस्जिद से मुनाफिक को भगाया, हम आज वहाबी को भगाएं। क्या हुजूर की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। लेकिन बात ये है, हुजूर की ये बातें भी तो बताई होती ना, तो फिर कौम ये भेड़ नहीं हो जाती। कौम को तुमने ये अखलाक 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 अखलाक, हमने कहा देखो ये हुजूर है जो खंदक खुद रही है। सुभान अल्लाह, सुभान ये हुजूर है जो अल्लाहु अकबर उन्हें इनके अंदर फिर पर फरमा रहे हैं। हाँ, अनम नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, जब ग़ैज़ो ग़ज़ब का मामला आता है तो फरमाते सवारी छोड़ो। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जंगे हुनैन के अंदर सुनो बात आ गई। अल्लाहु अकबर, मर्ज़ी रब से थोड़ी देर के लिए काफिर गालिब आए, शाहो जलाल के अंदर हुजूर अल्लाहु अकबर रसूल से कह दो मैं हूँ सच्चा नबी, मैं हूँ सच्चा नबी। फरमाया था सहाबा सवारी को रोक रहे हैं, सहाबा सवारी को रोक रहे हैं। हुजूर फरमाते सवारी छोड़ो, अब मुझे जंग में जाना है। ये भी तो कौम को बताओ, कौम का अखलाक अखलाक
इमामुल अंबिया, ये है इमामुल अंबिया। ये तो कौम को बताओ। फरमाया था मिट्टी उठाई, उसके बाद जब बैदो हजम का लड़ हुआ, सवारी नहीं रोक पाए सहाबा, हुजूर ने सवारी जंगे हुनैन में ढाल दी। यही फरमाते हुए मैं हूं नबी बरहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी डाली, आला हज़रत ने इस वाक़े को नक़ल फरमाया, इरशाद फरमाते मिट्टी उठाई और इरशाद फरमाया शक़्क़तिल वुजूह, मिट्टी छोड़ दी गई। और उसके बाद काफिर उल्टे पांव पलटे और वहीं पर जंग खत्म। ये भी तो बताया होता है, कौम को ये भी तो समझाया होता, ये हुजूर है, ये इमामुल अंबिया है। आला हज़रत नक़ल फरमाते हैं कि उसके अंदर जो लोग थे बाद में जो ईमान लाए, उन्होंने बताया कि जब हुजूर ने मिट्टी लेकर और यूं मारी तो ऐसा लगा कि एक पीतल की दीवार कायम हो गई है बहुत ऊंची आसमान तक। अब अनकरीब कही जाती है कि हम सब फना हो जाएंगे। ये भी तो कौम को बताया होता, ये भी तो समझाया होता। हम पहले से कुछ और अखलाक अखलाक अखलाक, और वो अखलाक का मतलब ये समझते हैं कि हुजूर के दुश्मनों का रद ये बिल्कुल बिल्कुल लपेट कर दिया जाए। ये अखलाक बताना है, अखलाक फारूक आजम भी तो बताओ। आपको बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आजाद पे पैदा सफर, उस खुदा दो हजरत पे लाखों सलाम। अखलाक की बात करने वाले अखलाक की बात हम भी करते हैं, लेकिन कोई अखलाक है वो तुम्हारा अपना खुद साख्ता अखलाक होगा, वो तुम्हारा इज्तिहादी खाना साज इज्तिहादी अखलाक होगा। हुजूर का अखलाक तो ये था कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हुजूर का अखलाक और हुजूर वालों का अखलाक ये था कि अल्लाहु अकबर सामने कोई रिश्तेदार हो, अज़ीज़ हो, खराबतदार हो, जब तलवार चलती थी तो ये नहीं होता था सामने कौन है ये देखा जाता था, सामने हुजूर का दुश्मन है या हुजूर के मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह। कौन सी रिवायत बताऊंगा, तवील से तवील होता जा रहा है, एक बात से दूसरी बात निकलती है, लेकिन सुनो जो मैं बताना चाह रहा था। फरमाया तो नूर की बात सुनो, हाँ उनकी बात सुनो जिन पर ईमान लाए हो, हाँ उनकी बात सुनो जिनके लिए पैदा किए गए हो, उनकी बात सुनो जिनके लिए उठाए गए हो, उनकी बात सुनो। वो फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाह, मोहब्बत तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते करनी है। बात खत्म, जाविया मिल गया हमें, मियार मिल गया हमें, नहज मिल गया हमें, तरीका मिल गया हमें, बात खत्म। मोहब्बत अल्लाह रसूल के वास्ते करनी है, मोहब्बत वमन अबग़ज़ लिल्लाह, यही मंजिल तो कठिन है। हाँ, दुश्मनी और अदावत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, वो भी अल्लाह उसके रसूल के लिए करनी है। सुनो, अब आप पूछोगे इसका मतलब, तो मैं आपको बताऊंगा। मन अहब्बा लिल्लाह का मतलब बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, दो बातों के अंदर। मन अहब्बा लिल्लाह का मतलब ये है जो तुम सरकार गौसे आजम के नाम पर तन मन धन कुर्बान करते हो, ये मन अहब्बा लिल्लाह, ये का तो एक चीज है। हमने सहाबा को भी अगर माना तो वो हुजूर की वजह से माने। हुजूर तो हमारे सब कुछ, हुजूर वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर करीमत, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। हाँ, सहाबा को भी माना तो हमने हुजूर की वजह से माना। तो जो बता रहा था मन अहब्बा लिल्लाह का मामला वो ये है, जो हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम ख्वाजा आजम से मोहब्बत करते हैं, जो हम मुजद्दिद आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुनाज़िर आजम से मोहब्बत करते हैं, वो जो हम मुफक्किर आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, ये मन अहब्बा लिल्लाह का है। लेकिन सुनो, हम वहाबियों से नफरत करते हैं, बेदरियों से नफरत करते हैं, इसी का नाम तो मन अबग़ज़ लिल्लाह है। जो हम कल्पियों के ऊपर शिद्दत करते हैं, इसी का नाम तो वमन अबग़ज़ लिल्लाह है। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं वमन आता लिल्लाह, किसी को कुछ दो, कुछ भी दो, तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए दो। वमन मना लिल्लाह, किसी को कुछ देने से मना करो तो वो भी
वली अल्लाह उसके रसूल के लिए मना करो। मौलाना आमिर साहब बोले, मौलाना साहब साहब बोले मैं अपनी घर की शादी का कारण किसी वहाबी को नहीं दूंगा, मतलब वमना लिल्लाह ही तो है, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले मैं किसी वहाबी के साथ खाना नहीं खाऊंगा, वमना लिल्लाह ये हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ चाय नहीं पीऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी को अपनी मस्जिद में आने नहीं दूंगा, ये भी हुजूर के लिए है, हमारे लिए आपके लिए नहीं है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। ये बोले किसी वहाबी के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये भी हुजूर के लिए है। मतलब ये है जब इस ज़ाविये में पहुंचोगे, मोहब्बत तो हुजूर के लिए, अदावत तो हुजूर के लिए, अता किसी को करना तो हुजूर के लिए, ना किसी को करना तो हुजूर के लिए। इससे हासिल क्या होगा? तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला? हुजूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तक़मल ईमान, तो तुम ईमान मुकम्मल कर बैठोगे, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कसम है रब्बे काबा की, जब ईमान मुकम्मल हो जाएगा तो जहाँ भी कामयाब हो और कब्र में भी कामयाब हो, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में तो मामला ये होगा कि जुलूस में हम इस तरह शरीक होंगे कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। एक नारा तो यहाँ भी हो जाए, जोर से कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, के आला हज़रत जाने हुजूर शेर सुन्नत, जाने हुजूर शाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन याद रखो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं ना, मैदान महशर में तो सुभान अल्लाह कहा जाएगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, जोर से कह दो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे, सब भेजेंगे। और आला हजरत और शेर-ए-शेर सुन्नत और उन आकाओं के पीछे कहीं हम और आप भी तो होंगे, कहीं हम और आप भी होंगे। तो मलाइका सब भेज लेंगे हुजूर, और उस रोज बनफ्से नफीस हुजूर जलवा फरोज होंगे। सुभान अल्लाह। सब सलाम भेजेंगे, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। काश मुझसे खिदमत के कुदसी का सुभान अल्लाह। आला हजरत से कहा जाएगा, ऐ रज़ा अब मुस्तफा जाने रहमत हो जाए, इसको मोहब्बत का एक सलाम हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं तमन्ना तो ये है जिंदगी भर सलाम पर दलीलें देता रहा, वहाबियों का जीना हराम करता रहा। हुजूर पर सलाम ये दलील है, सलाम ये दलील है, कयाम ये दलील है, खड़े होकर ये पढ़ना है, सलाम ऐसे पढ़ना। जिंदगी भर सलाम पर दलीलें देता रहा, लेकिन जब अपनीनो आफरीन का मजमा हो और हुजूर जलवा अफरोज हो तो कहा जाए अहमद रज़ा अब तुम्हारा भी सलाम हो जाए। जिंदगी में तो दलीलें दे ली बहुत दी, अब सलाम हो जाए। महबूब समाज के लिए तैयार है। अब जो सलाम होगा तो आला हज़रत का निराला सलाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो हुजूर पर हम सलाम भेजेंगे, मुस्तफा आला हज़रत पढ़ेंगे और वहीं पर उसी झुंझुन में इंशाअल्लाह हम और आप भी होंगे। तो आला हज़रत पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बरकत हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को महराबे काबा देती, उन भगवान की लताफत पे लाखों सलाम, हाथ जिससे टोटा गनी कर दिया, मुझे मेरे समंगत पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। और यहीं पर कहीं चेहरे अबू बकर सिद्दीक पर जब नजर पड़ेगी तो आला हज़रत कहते हैं अब्बा सादिकी सय्यदुल मुत्तकी चश्मे खोशे बसारत पे लाखों सलाम। जब कहीं इसी मजमे में चेहरे फारूक आज़म पर नजर पड़ेगी तो कहेंगे तारीख़ हक़ व बातिल इमाम होगा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। उसी मजमे में कभी चेहरे उस्मान बिन नूरैन पर जब नजर पड़ेगी तो कहेंगे यानी उस्मान साहिब कमीज़े होगा
बेहतर शक्ल पर तबे कदरों पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सलाम ऐसा सलाम है इंशाअल्लाह कल मैदाने क़यामत में आला जहां भी पढ़ना है और वहां पर आला हजरत के साथ में हुजूर के सामने से कह दो बात वही है कि उनके दुश्मनों से तुम्हें गुस्सा भर, तुम्हें उनके दुश्मनों से एहतिराज और इज्तिनाब और जितनी हो सके बाबू जितनी ये आदत हो वो शिद्दत वो इबादत का एक अहम हिस्सा है। हाँ शेर पे शेर सुन्नत मदरे आला हजरत एक वाक़या आ गया एक वाक़या ध्यान में आगे मैं सुन ले। हुजूर शेर पे शेर सुन्नत से एक उनके मुरीद ने सवाल किया हुजूर कोई वजीफा बता दे। क्या बता दे? वजीफा बता दे। तो फरमाते वजीफा करना चाहते का हुजूर कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा तुम जानते हो कारोबार का वजीफा सुनना चाहते हो मुझसे? सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते? तुम मुझसे क्या सुनो? हुजूर शेर पे शेर सुन्नत बता दो। हुजूर शेर पे शेर सुन्नत कहते हैं दुकान के आगे कल से बैठना और लित तेरी की वहाबियों की करते रहना। मुत्तक़ियों आओ सीखो इमामुल मुत्तक़ीन से किसको तकवा कहते हैं। हाँ ये तकवा है ये वजीफा है। अब इसकी आपको असल बताऊं तो हुजूर फरमाते हैं मन लम यकुन इंदहु सदका फलयलअनिल यहूद। जिसके पास सदका ना हो वो यहूदियों पर लानत करता रहे। उलमा बताते हैं यहूदी काफिर वहाबी उससे बड़े काफिर। यहूदियों पर लानत करने से हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जान का भी सदका होगा, तुम्हारी औलाद का भी सदका होगा, तुम्हारी माल का भी सदका होगा। हुजूर से सुन्नत ने बता दिया और वहाबियों पर जब लानत करोगे तो कितना बड़ा सदका है। वो खजूरे तुम अगर 1000 बांटोगे और इधर एक वहाबी पर अगर लानत करी तो टोकरों से ज्यादा सदका तो इधर है। हमने तो सीखा ही नहीं इसके अलावा, हमने तो जाना ही नहीं इसके अलावा। लोग बोले इस्लाही तकरीर इस्लाही तकरीर इस्लाही तकरीर वो गाड़ी बात हो रही थी। तुम इस्लाह का मतलब ही नहीं समझे। बेवकूफी जमाना इस्लाह का मतलब ही नहीं समझे। इस्लाह तो पहले तरतीबवार होगी ना। सबसे पहले इस्लाह तो अकाईद में होगी ना। तो ये इतनी देर से तकरीर इस्लाही तो तकरीर है अगर कुछ अकल होती। वहाबी का रद ये इस्लाही तकरीर है। देवबंदी का रद अकीदे की इस्लाह में सबसे बड़ी इस्लाह है। बोले इस्लाही तकरीर आला जगह फरमाते हैं ना कि शैतान अपनी औलादों को तालीम तो करता है लेकिन आदि वो भी औंधी। बताता तो है ऐसा नहीं बताता, नई टैबलेटें लाके देता है अब ये मार्केट में लॉन्च करो अब ये लॉन्च करो। तो अल्लाह फरमाते शैतान अपनी औलादों को वो तालीम तो करता है लेकिन आदि करता है और वो भी औंधी करता है। उन टैबलेटों में से एक ये भी टैबलेट है। उनका मतलब ये नहीं होता इस्लाही तकरीर, उनका मतलब इस्लाही तकरीर का कुछ और होता है। उनके अपने एक अजीब लोगों के अंदर मतलब ये होता है वहाबी का रद न किया जाए, देवबंदी का रद न किया जाए, नजदी का नून न लिया जाए, वहाबी का भाव न लिया जाए। खुदा उसके रसूल अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के ऊपर शिद्दत और जिद्दत न करी जाए। उनका मतलब ये होता है हमने कहा अगर ये इस्लाही तकरीर है तो ऐसी इस्लाह तुम्हें अंदर रखो और वो इस्लाह जो आला हजरत ने बताई, वो इस्लाह जो शेर पे सुन्नत ने बताई और वो इस्लाह जो उनके सदक़े में मुजाहिदे मिल्लत ने बताई, वो इस्लाह इस्लाह है जो बुजुर्गों ने बताई। जिस सिमत आ गए वो सिक्के बिठा दिए। सुन्नत मदर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला जो आला हज़रत के मजहरे कामिल थे, मजहरे अकमल व अतम थे। शेर में सुन्नत के साथ क्या बताऊं आपको और वक्त नहीं और महल नहीं क्या बात बताऊं। आला हज़रत एक मकाम पर फरमाते हैं वल्लाहि नज़ीम अपने वालिद माजिद की बात करते हुए इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे वालिद माजिद है, इसलिए कहता कि मैंने मेरी निगाह ने उन जैसी नजीर नजर न आई।
लेकिन उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे दादा है जबकि अमजद है, शेर सुन्नत वो है, शेर सुन्नत वो है जिनको सीने से लगाकर आला हजरत ने अबुल फतह कहा था, शेर सुन्नत वो है जिनको मजहर आला हजरत लक़ब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था, शेर सुन्नत वो है जिन्होंने नगर नगर जाकर एक एक कड़िए में जाकर वहाबियों की गर्दनों पे टांग रखकर उनका कलेजा जो दबोचा है, तो आज तक चीखें उनकी निकल रही है, आज तक आवाजें निकल रही है, आज तक अगर शेर सुन्नत का नाम किसी आबादी में ले लिया जाए वो हमें मूर्ख मार देता शेर के नाम से आज भी वो दबदबा और वो अल्लाहु अकबर। मैंने रिवायत में ये पढ़ा, हुजूर मुफ्ती आज़मी से कहा गया कि हुजूर कुछ अलालत तो कहा, हुजूर शेर सुन्नत का जिक्र करके उनके नाम से शैतान भागता है, उनसे कह दो करते उनके नाम से शैतान जोर से कह दो। याद रखो बाबू, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या आपको समझाऊं, लेकिन बात असल वही है बाबू, बात वही है कि आज मामला ये है, आज तरीका ये है कि हुजूर के लिए लड़ने वाला कोई नहीं, अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले आपको अभी आप कोर्ट में चले जाओ 50 मिलेंगे, जायदाद के लिए लड़ने वाले 50 मिलेंगे, दुनिया के लिए लड़ने वाले 50 मिलेंगे, इधर उधर के लिए लड़ने वाले 50 मिलेंगे। अम्मा हमने कहा एक लड़ाई हुजूर के लिए भी लड़ लो, वो लड़ाई तो सिद्दीक़ अकबर ने लड़ी, वो लड़ाई तो फारूक आज़म ने लड़ी, वो लड़ाई तो सहाबा ने लड़ी, वो लड़ाई कौन लड़ेगा, वो भी तो लड़ लो। हाँ, वो लड़ाई वो है जो भी आपने सुना कि उसके ऊपर निजात का मदार है, निजात का मदार है, वो लड़ाई कौन लड़ेगा। हाँ, इधर उधर की लड़ाई लड़ने वालों उठो, हमारे करने से काना मिलाओ और उठने के बाद फिर लड़ाई लड़ो, वो बुज़दिल ना बनो, अल्लाहु अकबर, भेड़ बकरी ना बनो, शेर हो तो शेर की जिंदगी जियो, चंद दिन कम जियो लेकिन वो शेर की जिंदगी जियो, अल्लाहु अकबर। उठो, उठने के बाद एक आवाज लगाओ, एक अच्छा माहौल बनाओ, वो माहौल पैदा करो, वो अल्लाहु अकबर अपने गांव के अंदर एक माहौल बनाओ कि कोई लड़ाई हो लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए पूरा गांव एक जगह खड़ा मिलना चाहिए, जब सहाबा की बात आ जाए एक जगह एक मकाम पर पूरा गाँव मिलना चाहिए, इसलिए गाँव मिलना चाहिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, बाबू पूरा चल रोजा है, सब घाट पर आ जाएगा, नाच चलेगा बंजारा, कंकर कंचुम महल बनाया, लोग कहे घर तेरा न घर तेरा न घर मेरा, कुरिया है बसेरा, सब घाट पर आ जाएगा, जब नाच चलेगा बंजारा। मौला तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम फरमाए, मौला तबारक व तआला से दुआ है हमें और आपको मसलक शेर सुन्नत पर कायम दायम फरमाए, मौला तबारक व तआला से दुआ है कि हुजूर के दुश्मनों की ऐसी तैसी करने की हमें और आपको तौफीक फरमाए, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची उल्फत अता फरमाए और उसी उल्फत के साथ हमारा और आपका आखिरी खात्मा बिलखैर अता फरमाए। बसे मुर्दन है वादाए दीदार, शौक जीने का क्या करे कोई, जब तजल्ली किया करे कोई, क्यों न बेखुद हुआ करे कोई, नाम जपते रहो उबैदुल का, नाम जपते रहो उबैदुल का, घर पे जलकर धुना करे कोई, गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए, या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। दुआ है मौला तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा आशिक रसूल बना दो, मौला सच्चा आशिक रसूल बना दे, इस महफिल के सत्ताओं तो फैल के मौला हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे, वो तेवर अता फरमा दे जो शेर सुन्नत के थे, वो तेवर अता फरमा दे जो आला हज़रत के थे, वो तेवर अता फरमा दे जो सहाबा के थे, और उसी तेवर के साथ उसको मस्ती के आलम में मौला हमारा खात्मा बिलखैर अता फरमा दे कि कहीं मलाइका हमारा इस्तकबाल करे, फरिश्ते हमारी रूह का खैर मकदम करे, फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करे। आज आया है कोई हुजूर का आशिक, आज आया है हुजूर का परवाना, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, और फर्श पर मातम उठे वो तैयबो ताहिर
रहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब उसी वालिहाना अंदाज के अंदर याद रखना वो कलाम इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में पढ़ना है। प्रैक्टिस आज कर लो, आज प्रैक्टिस कर लो, वहां पढ़ेंगे आला हजरत के साथ और हुजूर के साथ में खड़े हो जाइए सलातो व सलाम।